Hello, Dipanshu. Good morning. Hello, sir. Good morning. How are you, Dipanshu? I'm good, sir. How are you? All good. Okay. So, what are you doing today? Hmm. एक सेकंड sir. सर एक्चुअली ना थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, वो बुक खुल नहीं रही। अच्छा। एक सेकंड। हाँ हाँ, ठीक। सर वो आपके पास पिक्स थी ना, मैंने सेंड करी थी आपको। हाँ हाँ, पिक्स है मेरे पास। आपने एक्सरसाइज किया उसमें सर से? उसके अंदर 30। यस सर। ओके। तो उसके अंदर 30D.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 30D। 0.1 का। नहीं सर, ये हो गया था, इसका नेक्स्ट टॉपिक कराना है। अच्छा। सो 30D.1 हो यस चुका है। अच्छा, हाँ। यस थर्टी सर। डी पॉइंट वन के साइन रूल वगैरह सब हो गए थे ना? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। एक सेकंड सर। दिस इज द क्वेश्चन। नो पर ही हो गया था। ठीक है। कोई डिफिकल्टी आया इसके पीछे, इसके पहले कोई भी एक्सरसाइज में? नो सर। ओके। नो सर। देन ओके। सर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था ना, इससे हम्म। वो स्टार्ट करना था। नेक्स्ट टॉपिक मतलब कोसाइन रूल। नो सर। सर अब एक। कोसाइन रूल है एक है, इसके पहले साइन रूल का एम्बिगुअस कंडीशन जो है, एम्बिगुअस केस। ये वाला। पेज नंबर मैं यस सर, बताता ये हूँ, वाला। 507। सर एक्चुअली ना मेरी बुक खुल नहीं रही यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं ये तो नहीं बोल रहे, एम्बिगुअस केस जो है वो तो नहीं बोल रहे हो आप? ये वाला जो है, यस सर। यही ना? तो मेरे ख्याल से ये एम्बिगुअस केस भी मैंने यस सर। एक्सप्लेन किया था आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। चलो, जैसे कि सपोज दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ओके। इसमें क्या बोल रहा है एक्चुअली, बाय यूजिंग साइन रूल, इफ वी आर फाइंडिंग द एंगल, if we want to find the angle by using sine rule, what are the application of sine rule? By sine rule we can either find out the angle of the triangle or by side. Okay, or we can find out the side. Okay, the missing angle or the missing side when three components are given. Okay, like if suppose this is the triangle, hmm, a b यस सर। c. Okay, so these angles are given, angle a b are given, and the opposite side of angle a is denoted by small a, this is also given.
but we don't know this. Okay, so in that case we can definitely find out AC by using sine rule. Okay, what is the sine rule? The sine rule is, come on, how would you apply the sine rule here? So sin A upon A. Yes, sine A upon A is equal to A. Sin sine B upon X. B. Yeah, X. Yes, We X. don't know the value of that. So X. Okay. So if these Yes, three sir. components are given, we can definitely find out the missing component, which is X here. Okay. Likewise, if suppose one of the angle is not given, okay, one of the angle is not given, and this is given B. So in that case also we can find out the missing angle. But while calculating the missing angle, okay, so as we understood, there are two application of sine rule. One is to find out the missing angle, and the other is to find out the length of the missing side. Okay, so if you find out the angle, in that case sometimes the sine rule have ambiguity. ठीक है, ambiguity क्या होता है इसमें? Let's suppose in this question, in triangle ABC, AB is equal to 12. Hmm? Yes, sir. AB is equal to 12. AC is equal to 8. Angle B measures 28. Find, rounded to one decimal place, the measurement of angle C. Okay, so this is X in our case, right? So how do we find out this X value? What will you apply here? So sin C upon 12 Sin C upon 12. Okay. is equals to sin 28 upon 8. Sin 28 upon 8. ठीक है, अभी now this, according to sine rule, we can definitely find out the angle C in this case. So we have to just transfer the terms. So 12 by 8 sin 28. जरा ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे. 12 by 8 into sin 28 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 12 by 8. एक सेकंड सर. So 0.7042. 0.7042. 42. ठीक है, ये आपका साइन सी आ रहा है ना. तो साइन सी का वैल्यू क्या आ रहा है Yes, यहाँ sir. पर? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? So positive. पॉजिटिव है. तो when we were like in unit circle, we observed that like in the first quadrant all trigonometry ratios are positive, right? What about Positive. the second Yes, sir. quadrant? Which trigonometry ratios are positive in So second quadrant? हाँ, so कौन सा? sine. Sine. Sine and So cosec are positive. And in third, yes, sir. tan and cotangent are positive. And in fourth, cos and sec are positive, right? So we got Yes, sir. sine of the angle positive right here. So which, like our angle C,
must be present in which two quadrant? See, basically So for each value terminal of sine, cosine, tan, we'll definitely have two quadrant in which our angle lie. Okay, so like sine c is equal to 0.7042, which is a positive number. So the angle c has to be in two quadrant. So you just observe which two quadrant has sine value positive. so first and second. Yes, first and second. So my angle must be in either first quadrant or in the second quadrant. In both the cases, we'll definitely get the sign of the angle positive, right? तो अब Yes, sir. यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है. इफ यू फाइंड आउट द एंगल सी बाय कैलकुलेटर, just do this operation. Sine inverse of 0.7042. What is the angle? So 44.8. हाँ, ये आपका कैलकुलेटर सिर्फ एक ही एंगल बताएगा. 44.8 डिग्री यही आपको बताएगा. It means my angle is in first quadrant, okay, which has angle 44.8 Yes, sir. degree. Okay, so 8. my angle is in first quadrant, but my angle has to be in second quadrant also, because this sin c is positive and Yeah. sin c is positive in second quadrant also. So my angle may be in second quadrant, right? So what Yes, is sir. the, like, if like we understood the unit circle, so we know this angle is 44.8. So what is the corresponding angle which gives you the same value of sine, which is in second quadrant? So हाँ, so 135.2. कैसे निकालोगे? 135.2. कैसे निकालोगे लेकिन वो तो दिया हुआ है बुक में, लेकिन कैसे निकालोगे? 180 minus हाँ, 180 माइनस 44.8 कर 44. दोगे. So this will give you the angle in second quadrant, the symmetry angle, okay, in the second Yes, sir. quadrant. So which is 130, कितना बताया आपने? 130, देख लेता हूँ मैं भी. 135.2 है ना? So that angle is Yes, sir. 135.2 degree. So if you just plug this value in calculator for the sine function, है ना, देखो आपको कितना आंसर आ रहा है. ये तो हमने यूनिट सर्कल के अकॉर्डिंग हमने, सही है. हाँ, से तो फिर ऑब्ट्यूज के लिए हो जाएगा ना, बट हम साइन रूल तो एक्यूट के लिए यूज करते हैं. नहीं ऐसा थोड़ी है. हाँ, ये देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया नहीं है ना. अगर यहाँ पे ये बोल देता कि आवर एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, देन वी वुड हैव डेफिनेटली गो विद दिस एंगल 44.8 डिग्री. लेकिन यहाँ पे इसने कुछ बोला ही नहीं है ना. क्वेश्चन में अगर कुछ बोला ही नहीं है कि आपका एंगल सी ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है, देन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर आप यहाँ पे साइन कैलकुलेटर में फीड करते हो, सो इट विल डेफिनेटली गिव यू द सेम वैल्यू एज ऑफ दिस 0.7042. ठीक है, तो आप कौन सा एंगल चूज करोगे? 44.8 डिग्री और 135.2 डिग्री. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन गिवन इन द क्वेश्चन whether my angle C is acute or obtuse. It is not mentioned in the question. तो आप कौन सा एंगल चूज करोगे? So this case is called ambiguity case. Okay, this is ambiguous case. बात समझे आप? यस सर. Ambiguous means which is not clear, कि कौन सा चीज हम लेंगे ये हमें क्लियर नहीं है. So this case is called ambiguous case. अगर आप, चलो ठीक है, अभी if you want to draw the triangle, see the triangle has to be one, like it must have the unique dimension, right?
अगर आप ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, जैसे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये सारे जो इंफॉर्मेशन दिए हुए उसके, दैट हैज टू बी यूनिक, दैट हैज टू रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन ट्रायंगल, isn't it? लेकिन ये जो केस आ रहा है हमारे पास, in that case we are getting two different angles. One is 44.8, the other is 135.2. So it will give us two different triangle. Are you getting that? So is it possible to have like two different triangle for the same dimension? नहीं हो सकता ना. आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे ही No. प्रॉपर्टी के, मेरे ही फीचर्स के, मेरे ही जैसा एक दूसरा आदमी भी है. So that's ambiguity case, right? So it's ambiguous. तो जो सेम डायमेंशन दिया Yes. हुआ है, सेम डायमेंशन के दो ट्रायंगल कैसे हो सकते हैं? So this is not clear. So finding angle is like sometimes the ambiguity in according to sine rule. It's ambiguous case basically, like under sine rule. Okay. तो अगर आप सोचो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अगर हम if you want to draw this triangle ABC, तो सबसे पहले चलो बेस क्या है, हम लोग इसको AB ले लेते हैं बेस. ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ. ए बी, ठीक है, ये कितना है 28 है, और ये सी है, ये आपका एक्स है, ये 12 है, ये सी 8 है. ठीक है. सो सपोज मैंने ये इसको खाली थोड़ा टर्न कर दिया है, दिख रहा है आपको, Yes, sir. ताकि मैं बेस ए बी को ले सकूं. ठीक है, चलो अभी बेस ए बी हमने ड्रॉ किया 12 सेंटीमीटर का, राइट. फिर Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप क्या करोगे आप? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल we have drawn the base AB. Now what is our next step? So angle. Angle, which angle? So 28. 28. So we will draw this angle 28, right? Yes, sir. Then what next? So फिर इसकी एक और साइड थी 8. 8 सेंटीमीटर की. AC का 8 सेंटीमीटर है ना. Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउंडर रखेंगे, राउंडर का टिप रखेंगे और 8 सेंटीमीटर का कट करेंगे, है ना. तो Yes. 8 सेंटीमीटर आपको दो जगह कट करके देगा वो. आप बात समझ रहे हो, यहाँ पे फंसता है मैटर. दो जगह कट होगा, तो दो जगह कट होगा तो आपको कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग? Sir 2. दो ट्रायंगल मिल जाएंगे. वन ऑफ द ट्रायंगल विल हैव एंगल C as 44.8 डिग्री एंड इस केस में 135.2 डिग्री. तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि हमारे पास दो ट्रायंगल है सेम डायमेंशन का? नॉट पॉसिबल ना. Yes, sir. So therefore this is an ambiguous case. Is it clear? Yes, sir. Okay. ये पिक्चर ले लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पूरा एक साथ क्लियर कर दिया. ठीक है. Yes, sir. Done. ओके. नाउ नेक्स्ट So cosine rule. कोसाइन रूल. ठीक है. कोसाइन रूल. सो जैसे साइन रूल है, ओके, नाउ वी हैव कोसाइन रूल, and to overcome the problem of what we observe in sine rule, cosine rule will help us to get rid of that limitation. Okay, so like in cosine rule, if we have a triangle, suppose just consider one triangle ABC. Okay, Yes, sir. now this rule also help us to find out the missing side as well as missing angle. Okay, when three components are given. See, whenever we are given three components of the triangle, see, like when we had a right angle triangle, there also we could find out the missing angle or missing side, right? When at least two components are given.
either angle, side, or two side, two angle, whatever. Okay, but in those cases were applicable for right angle triangle only, है ना. आप कोई भी साइन कोसाइन और टेंजेंट रूल लगाते थे तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगाते थे ना. See, the advantage of having this sine and cosine rule is basically we can apply the trigonometry ratios in any sort of triangle. Okay, it is not restricted to right angle triangle only. We can apply these rules to any type of triangle. Understood? So this is the advantage of having sine and cosine. Now, like in this triangle, consider this triangle ABC. So as convention, we will denote the opposite side of angle A by letter A, small a, the opposite side of angle B by letter small b, and this by C. Okay. Now, if suppose we have to find out the relation between these A, B, C and the angle, any angle. Okay. So at a time, basically what we do, uh, see, let's draw the perpendicular line. Then you'll eventually you'll understand the relation. What relation we are getting. I will not give you the direct relation or the formula what we are supposed to find out. We'll understand through the process that what relation we are getting here. Okay. So I'm just telling you to draw. Let's draw the perpendicular line from A to BC. ठीक है. ये आपका करते हैं. ठीक है. फॉर्मूला क्या है वो अभी हम देखेंगे फॉर्मूला क्या आ रहा है. ओके. So we'll draw a perpendicular line from point A to side BC. Okay. तो इसको हम चलो कुछ ले लेते हैं, D ले लेते हैं, right? This point is D. Now, if this is X, let's say, if BD X, okay, the length of BD is X, then what would be the length of CD? Because the total is A. Do you understand? So A minus X. A minus X. X. Yes. So now we got two right angle triangle, isn't it? This and this. Yes. So what if suppose I give you AD as let's say AD only. Will not complicate this. Okay, so if we got two right angle triangle, what we are supposed to apply in the right angle triangle? If suppose these two sides are given, what we are supposed to apply? The very first important thing applied in right angle triangle is Pythagoras theorem. Okay. So according to Pythagoras theorem, can we find out AD, which is like in terms of C and X? Okay. So if we apply the Pythagoras theorem, what would be AD square? AB square. AB minus BD. AB square minus BD square. BD square. Okay. According to Pythagoras, AD square is equal to AB square minus BD square. Is it clear? Okay. So what is AB? AB square is C square. C square. BD square is X square. ठीक है. चलो इसको हम freeze कर देते हैं. Now in the second triangle we also have AD, right? AD यहाँ पे भी common है. Actually क्यों हम ले रहे हैं ऐसा? AD common आ रहा है ना दोनों triangle में, है ना? तो इसके लिए AD हम लोग calculate कर रहे हैं. Then we will equate. We will replace AD square with other expression, the known expression. तो यहाँ second triangle में AD square is equal to क्या आएगा? AC square minus DC square. So B square minus A minus X the whole square. Okay. So see, these are the known quantity. Are you getting that? These are the known quantity. But we don't know AD. Right? AD कुछ पता नहीं हमें AD क्या है. But we can definitely find out AD square or AD in terms of the given quantity, in terms of the known quantity. Right? So if we equate these two equation, like both are AD square, so we'll definitely have this expression C minus X square
is equal to, sorry, c square minus x square is equal to b b square minus a minus x also. x square. Okay, please help me to simplify this. क्या मिलेगा आपको, थोड़ा बताओ, डिक्टेट करो. Square minus x square Okay, c square minus x square, is then equal to b square b square minus a square minus a square. minus 2ax. तो ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, तो प्लस कर दूं, Yes, sir, plus x square 2ax minus plus x square प्लस minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर, है ना. Yes, sir. ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना हमने. ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर? Sir, x square. हाँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि एक्स भी तो अननोन क्वांटिटी था ना. हमको क्या मालूम कि एक्स का लेंथ क्या है, तो इसलिए Yes, हमने sir. एक्स लिया. नोन क्वांटिटी क्या है, ए बी सी है और एंगल्स है, ठीक है ना. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, these are the known quantity because these are the given, the triangle is given, so some of the quantity will be given to us and one will be missing, so we can find out that one. So we are setting up the equation between all three quantities. Okay, so c square, चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा. Yes, sir. इसको रीअरेंज कर लूं तो कैसे लिख दूंगा इसको, a स्क्वायर Equals to b square minus c square. हाँ, A square is equals to b square minus c square. नहीं, बी स्क्वायर को छोड़ देता हूँ यहाँ पे और बाकी सब ले जा रहा हूँ यहाँ पे. तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसको रीअरेंज करता हूँ फिर से. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax. लेकिन ये x भी तो अननोन क्वांटिटी है ना. Yes, sir. तो x का वैल्यू क्या होगा साइड के टर्म में, ये x यहाँ पर है. अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको, चलो b एंगल दिया हुआ है आपको, तो कैसे फाइंड आउट करोगे x c के टर्म में. लेट्स से b इज गिवन, दिस एंगल इज गिवन. So cos theta. हाँ, so cos b is equal to x upon c, right? Yes, sir. So x is equal to c cos b. ठीक है ना. Yes, x sir. is equal to c cos b. तो इसको हटा दो और x के जगह पे c cos b लिख दो. तो यही आपका फॉर्मूला हो गया. देखो b स्क्वायर, मैं ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. a b c, ठीक है. Yes, सो sir. b a c और ये एंगल हमें गिवन है. ठीक है. सो इन दिस केस, लाइक व्हाट इज द रिलेशन, b स्क्वायर, ओके, दिस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b. So did you observe that the angle is between like these two sides? ठीक है. तो अगर मुझे इसको दूसरे, let's suppose this formula is to find out angle b, right? We Yes, can sir. find out not and we can find out side b. ठीक है ना. अगर मुझे suppose a और c find out करना है, so what would be our formula in that case? If suppose मुझे a find out करना है, तो a square is equal to क्या लिखोगे? C square minus b square. नहीं, देखो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी A स्क्वायर C square. माइनस 2ac cos b.
cos B. ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं ए स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख पाऊंगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर Plus C square माइनस टू minus बी सी BC कॉस cos B. ए, B नो कॉस ए, cos A. that angle has to be between these two sides B and C. ओके अच्छा, अगर मुझे मान लो सी स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? A square plus B square हाँ, ए स्क्वायर minus बी स्क्वायर माइनस minus 2 टू C minus 2BA माइनस टू ए 2BA cos कॉस C. cos c. Very good. So these are called cosine rule. समझे? आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा Yes, क्वेश्चन sir. में दिया हुआ है उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो. तो अगर आपके पास कोई भी तीन क्वांटिटी दिया हुआ है, like B, C and angle A, we can definitely find out the other quantity, other side. Okay? Yes, अगर sir. थ्री साइड्स दिया हुआ है तो we can definitely find out the angle, each angle, right? So these are the advantage of having cosine rule. कुछ प्रॉब्लम करें इसका? Yes, sir. ठीक है. सर ये एक्टिविटी के अंदर है एक. सर एक सेकेंड. सर एक्टिविटी के अंदर है प्रूव द कोसाइन रूल ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos A. क्या दिया है? प्रूव द कोसाइन रूल ए स्क्वायर दिस, ओके, a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos a in the case where a is obtuse. हाँ, तो ये जो है ना आपका क्या दे रहा है, ये प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना इसने, ये दिख रहा है आपको, एच परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है. तो यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल मिल गए ना. हाँ, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए, राइट? दिस इज वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. चलो इसका नाम दे देता हूँ ए. अच्छा, ये ऑलरेडी ए दिया हुआ है. सो लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी, राइट? हाँ, यस सर. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? ए ऑब्ट्यूज एंगल है ना. ठीक है, चलो मैं इसको अलग से लेता हूँ, आप सेम डायग्राम रेफर मत करो. चलो, ये कंडीशन दिया हुआ है. वी हैव टू प्रूव द कोसाइन रूल फॉर द ट्रायंगल वेयर ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है ना. तो ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जहां पर ये ए बी सी है, राइट? तो दिस एंगल इज बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल, इजंट इट? है ना. यस सर. तो इसको प्रूफ करना है अब हमें, कोसाइन रूल इसमें प्रूफ करना है. तो पहले तो कोसाइन रूल के लिए वी हैव टू राइट डाउन ईच साइड. सो द एंगल, द साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, है ना. यस सर. And this is represented by small b and this is represented by small c. No, sorry. So B. Yeah. This has to be c and this is b, right? This side is b. So now we are drawing perpendicular line from c to the opposite side. तो opposite side को extend करना पड़ेगा, perpendicular line draw कर रहे हैं, है ना. So let's say this is x, ठीक है, और इस पॉइंट को d ले लिया. ओके, दिस लेंथ इज x, ठीक है.
चलो अभी Yes. दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें, राइट. वन इज ए डी सी. व्हाट इज द अदर राइट एंगल ट्रायंगल? Mm, so CDB. Very good. B D C. So in like CD is common, isn't it? The side CD is common in both the right angle triangle. तो हम CD square को equate कर सकते हैं. So if suppose ADC is right angle triangle, we can apply the Pythagoras theorem here, right? So what Yes, is sir. CD square? What will be CD square according to Pythagoras theorem? So BC square. Hmm? B square minus X square. है ना. ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट. Yes, sir. So सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस द अदर साइड स्क्वायर. So b square minus x square. Now in this triangle BDC, what will be CD square? A square minus C square. नहीं, a square minus, जल्दी बताओ. C plus X square. C plus X का whole square. Yes. So c plus x the whole square. Understood na? Because this whole length is c plus x, right? तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, Yes, sir. राइट. इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर सी डी स्क्वायर. तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर B इज इक्वल टू minus X. ए स्क्वायर माइनस सी A square. प्लस एक्स द होल स्क्वायर. C plus. Okay. So let's Yes, sir. simplify this. So b square minus x square, a square minus c square plus minus 2cx minus x square, right? Yes, sir. प्लस है यहाँ पे, ठीक है. तो ये x square will cancel out. Okay. What is left? Yes, sir. B So square is equal b, to हाँ तो पॉजिटिव बनाना रहेगा हमें. तो क्या करेंगे, देखो इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब ट्रांसफर करते हैं. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर C square. प्लस 2c x, 2C X. right? So can we find out x Yes, sir. in terms of b? When this angle is given, actually this is given, right? We are given this angle, है ना. Yes, sir. यहाँ पे जरा ध्यान देना आप, हमें ये एंगल मालूम है. सो कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल 180 माइनस, Hmm. है Yes, ना. sir. 180 माइनस, अगर सपोज मान लो इस ये एंगल ए है ना, ये कौन सा एंगल है? ए है. ये इसको ए हम बोलेंगे, है ना. दिस इज एंगल ए. तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस ए, राइट. Yes, sir. So 180 minus a. So can we find out x in terms of b when this angle is given? Cosine लगाओगे again. Yes, sir. So cos 180 minus a क्या होगा? Is equal to what will be cos 180 minus a? बताओ. So X minus B. Minus कहाँ से आया? No, X upon B. Yeah. So x upon b. So x is equal to क्या हो रहा है? b Cos 180 minus C. cos 180 minus A. a. तो ये x को रिप्लेस कर देंगे हम
और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c b cos 180 minus a, बी कॉस 180 minus 180 माइनस a, a. And what is 180 minus a? Cos 180 minus a. so minus यूनिट सर्कल को रेफर करो, cos 180 माइनस ए, सिमेट्री एंड यूनिट सर्कल को रेफर करो, minus cos, माइनस कॉस ए। बात समझ रहे हो आप ठीक से, देखो cos 180 माइनस ए है ना, तो 180 माइनस ए कहाँ पे आएगा, ये एंगल आएगा मान लो, है ना। yes, दिस इज 180 माइनस, दिस होल इज 180 माइनस ए। yes sir, तो इसका मतलब ये ए है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, है ना, yes sir, सिमेट्री लगाओगे जहां पर इसका कोसाइन एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा ना, वही कोसाइन वैल्यू होता है, ठीक है। yes sir, तो ठीक है, अभी हमारा पहले ऐसा समझ लो कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, so second, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन और साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, so negative, नेगेटिव होता है। तो कॉस 180 माइनस ए है ना, तो आप इसको cos a लिखो, और बिकॉज इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वी विल प्लेस माइनस n बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो Yes. यहाँ पे आप इसको माइनस 2cb cos a, आपने पीछे के एक्सरसाइज अच्छे से किए हो ना, यूनिट सर्कल को लेके जो भी एक्सरसाइज थे, yes sir, ठीक है। तो ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी तब, ठीक है। सो दिस इज द cosine rule. Actually, we got the same formula for obtuse angle also. So this is the we like cosine rule is overcome the limitation of sine rule, है ना, जो ambiguity था obtuse angle और ये सब लेके, लेकिन cosine rule में ये sort out हो जाता है, ठीक है। चलो अभी आप एक्सरसाइज करोगे तो ये ज्यादा आइडिया आपको समझेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का भी एंगल दे रहा है आपको, बात समझ रहे हो आप। yes जबकि sir, साइन रूल में क्या था कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं देता था, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का भी देता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी देता था, लेकिन कोसाइन में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो वो डिफरेंस करेगा ना, वो डिफरेंस दे देगा आपको, बात समझ रहे हो आप थोड़ा बहुत। yes sir, देखो साइन रूल में आपको एम्बिग्यूटी क्यों मिला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज एक्यूट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल आएगा, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो दोनों में ही साइन पॉजिटिव है, तो आप कौन सा चूज करोगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन कोसाइन रूल में क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन Yes. सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कोसाइन नेगेटिव देगा, तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल में नेगेटिव दे रहा है, एक्यूट एंगल में पॉजिटिव दे रहा है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो साइन रूल का लिमिटेशन था इसको ओवरकम कर रहा है, एंड वी विल गेट द प्रॉपर एंगल। सो वी ऑलवेज अप्लाई द कोसाइन रूल। अगर हम साइन रूल मतलब इफ वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल, वी विल अप्लाई कोसाइन रूल ओवर साइन रूल, ओके। yes sir, एक्सरसाइज करें एक दो क्वेश्चन, थोड़ा बेटर आइडिया मिलेगा। तो सर टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ है, 512, 512, अच्छा ये एक्सप्लेन कर दूं, इसमें वो है अपना जो बेरिंग वगैरह है ना, वही है प्रॉब्लम, लाइक जो द एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल। तो इसके पहले जो बेरिंग का कॉन्सेप्ट था, सो वी कुड अप्लाई द बेरिंग कॉन्सेप्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, और हम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते थे, याद है आपको, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि यूजुअली जो अगर ये एंगल 90 डिग्री मिल रहा है ना, एक एंगल 90 डिग्री मिलता था जब हम बेरिंग का ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, याद है आपको, तो एक Yes. एंगल 90 डिग्री मिल जाता था।
सो वी कुड इजिली अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। याद आ रहा है आपको? उस टाइम पे भी मैंने बोला था ये कि अगर ये 90 डिग्री नहीं होता तो क्या करोगे? देन इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द कोसाइन और कोसाइन साइन रूल, these two rules whatever fit। यस सर। ठीक है, तो ये टाइप का प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो ये सॉल्व एग्जांपल है ये पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो पहले डायग्राम तो आप मुझे लगता है कि आप ही ड्रॉ करके दिखा दोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेरिंग का डायग्राम काफी ड्रॉ किया है। तो चलो अभी आंसर रेफर मत करना, आप कोशिश करो जरा। क्या दिया है? अ शिप सेल्स 58 किलोमीटर ऑन द बेरिंग ऑफ 0.072 डिग्री, है ना? याद है ना कॉन्सेप्ट सब आपको? यस तो सर। क्या करूं पहले जरा बताओ। सर नॉर्थ ड्रॉ। हाँ, सर नॉर्थ। नॉर्थ ड्रॉ कर दूं, वेरी गुड। फिर 72 डिग्री। 72 डिग्री नॉर्थ से, है ना? तो यस नॉर्थ सर। से 72 डिग्री में ले लूंगा, तो ये 72 डिग्री हो जाता है। कितना किलोमीटर चलना है शिप को? 58 किलोमीटर। 58 किलोमीटर। तो इसको 58 अंदर लिख के अंदर नहीं लिखना चाहिए, वैसे कोई लिखना है। चलो 58 किलोमीटर, ठीक है। यस उसके सर। बाद क्या कर रहा हो? तो पास के बाद ये टर्न करेगी तो सर दोबारा नॉर्थ ड्रॉ करेंगे हम्म, और वहां से फिर बियरिंग बनेगी 158 डिग्री की, वेरी बट गुड। 41 किलोमीटर की। तो 158 मतलब ऑप्टिज एंगल दिखेगा थोड़ा 90 से ज्यादा रहेगा, और कितना किलोमीटर चलेगा? 41 चलेगा, है ना? यस सर। तो 41 तो थोड़ा छोटा बनाएंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा रेलिवेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो क्या यस सर। होगा, आपको समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाता है कभी। सो दिस इज 158 डिग्री एंड 41, सो 41 किलोमीटर। दिस हैज टू बी लेस देन 58 किलोमीटर, है ना? यूनिट हटा देता हूँ, थोड़ा यूनिट जगह ले रहा है ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे पहुंचा, फिर क्या बोल रहा है? हाउ फार इज द शिप फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, है ना? यस सर। सो तो जॉइंट ज्वाइन दोनों कर को। देंगे इसको, यस इसको सर। ज्वाइन करेंगे हम। चलो अभी कैसे फाइंड आउट करते थे ये हम, ये लेंथ। चलो आपको मैं ना नाम दे देता हूँ, ए बी सी। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। सो कैसे फाइंड आउट करते थे, कुछ बताओ। देखो ये दिया हुआ है 58 और यस ये सर। 41। जो पीछे के क्वेश्चन थे ना, उसमें ये आपको 90 डिग्री आ जाता था, याद है? यस सर। तो आप डायरेक्टली पाइथागोरस लगा देते थे, लेकिन अब 90 डिग्री नहीं आएगा। चलो करो जरा, कैसे एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे ये वाला, है ना? तो माइनस कर देंगे 360 में से। हम्म, तो 360 में से माइनस कर देंगे क्या? 158। क्यों? आंसर देख रहे हो? नो सर। सही है, दूसरी वाली साइड 72 हो जाएगी, बी 58। देखो ये 72 दिया है, नॉर्थ नॉर्थ क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर ये 72 है तो सर 72 प्लस बी 180 हो जाएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। हाँ, तो 180 माइनस 72 कर दोगे, कितना हो जाएगा वो? 108। हाँ, तो 108 हो जाएगा ना ये। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल ऑलरेडी हमें पता ही है, यस सर। कितना है वो? सही वाला 158। और ये 108। कैन यस वी सर। फाइंड आउट दिस एंगल? यस सर। क्या करना पड़ेगा? सर 360 माइनस 108 माइनस 152। हाँ, अभी समझे? सो 108 प्लस सर फिर 158 एंगल बढ़ा के बाहर कर देना। कितना हो जाएगा?
360 minus 102 अब ये देख सकते हो आंसर 94 हाँ 94, ठीक है। तो 94 डिग्री आ गया। होगा ना, हाँ एंगल अराउंड अ पॉइंट। हाँ, एंगल अराउंड अ पॉइंट मतलब वो पूरा उस रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो 360 डिग्री, ठीक है, समझ गए ना। यस सर। ओके, तो 194 आ गया, 90 तो आया नहीं, तो अगर 90 आता तो हम क्या कर लेते थे, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा देते थे, लेकिन अब 94 आ गया, क्या करेंगे, देखो ये 94 आ गया, तो कोसाइन रूल जो है वो एक्सपर्ट है किस चीज में, अपोजिट साइड फाइंड आउट करने में, एंगल का अपोजिट साइड फाइंड आउट करने में, व्हेन द टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम आर गिवन, वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल। तो अगर कोसाइन रूल देखो याद भी कर लो कैसे करेंगे, ए सी स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए सी हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का सम कर दो, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 AB BC cos 94 डिग्री, समझ गए। यस सर। तो ए सी स्क्वायर तो फाइंड आउट ही करना था, डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट, तो ए बी स्क्वायर कितना है, 58 है ना ये, यस तो सर। 58 स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 58 41 एंड cos 94, कैलकुलेट करो जरा, आंसर बताओ, लिटरली कैलकुलेट करो। स्क्वायर 3364। हाँ लिखूं क्या, कर लो एक ही बार में, बताओ ये पूरे का आंसर। स्क्वायर रूट बाद में करेंगे। So 5376.761. 76 5376 point पॉइंट 761 7 61. 61, ओके, तो ये आपका ए सी स्क्वायर आया, तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है ना, तो ये आंसर है 73.3, ठीक है। Yes sir. शकुंतला देवी जैसा फास्ट कैलकुलेशन कर लिया मैंने। तो ए सी कितना है, 73.3, क्रॉस चेक कर लो एक बार। ठीक है सर। यस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप करोगे, हाँ, टॉपिक पे नहीं जाएंगे अभी, नया टॉपिक, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता है ना, लास्ट लास्ट में मैं स्पीड में चलने लगता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि आप समझे कि नहीं समझे, मुझे डाउट होता है। वैसे ये जो ग्राफ है, ग्राफ फ्रॉम द यूनिट सर्कल, ये तो शायद मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया है, यस सर। है ना, जो y इज इक्वल टू साइन थीटा का जो ग्राफ है, हाउ डू वी गेट द ग्राफ ऑफ दैट साइन थीटा फ्रॉम यूनिट सर्कल, that cosine as well as tangent, all three I have explained you earlier, but अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से explain कर दूंगा, but ये next class में, आप पहले ये क्लास ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो इसमें, ठीक है, इज दैट फाइन, कि Yes आप क्या चाहते हो, सर। कुछ कुछ नहीं चाहते हो। नहीं सर, कुछ भी। एक सेकंड। सर फिफ्थ का सी पार्ट। फिफ्थ का यस सर। कौन सा, सी पार्ट, पेज नंबर सर 511। 511, अच्छा, फिफ्थ का सी, ये क्या, पोलोनियस मीडियम थ्योरम, अच्छा ठीक है, देखते हैं, सुना सुना तो है ये अपोलोनियस, हाँ, use the cosine rule in BCM to find cos theta
इन टर्म्स ऑफ ए सी एम। हाँ तो ये तो हो जाएगा, है ना, कोसाइन रूल से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना, कोसाइन रूल से हो जाएगा। लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है पीछे का यूज करना पड़ेगा, है ना। आप सी बोले हो लेकिन ए बी भी तो उसी से एसोसिएट है ना। तो कैसे लिखोगे आप, कोसाइन रूल कैसे अप्लाई करोगे? ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करना है, ट्रायंगल बी सी एम में। बोलो, एम और सी दिया हुआ है, एम सी और ए भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे लगाओगे बताओ? अपोजिट साइड्स सर का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर हाँ, ए इज स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस टू टू एम एम सी कॉस एम कॉस एम नहीं, एम। नहीं नहीं, कॉस थीटा दिया हुआ है ना उसने, एंगल थीटा लिखा है वहां पे, है ना। देखो एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है ना उसने। ठीक है, क्लियर है। यस तो हमने क्या लिख दिया वहां पे, यस सर। कॉस थीटा। फिर सेकंड क्या कर रहा है, यूज द कोसाइन रूल इन ट्रायंगल ए सी एम। ए सी एम, ठीक है, तो लगा देते हैं, ये पहला हो गया। फिर सेकंड में अब इधर यहाँ पे लगाओगे कोसाइन रूल, है ना। तो कैसे लगाओगे, ये एंगल दिया हुआ है 180 माइनस थीटा, मतलब ये दो एंगल दिया हुआ है, तो लगाओ कोसाइन रूल कैसे लगाओगे, बी स्क्वायर, है ना, अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल, इज बी इक्वल स्क्वायर टू इज इक्वल टू यस सर एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस टू एम सी क्यू होगा, वहां पे भी सी क्यू होगा टू एम सी क्योंकि, कॉस 180 हाँ वहां पे भी सी क्यू होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, समझ रहे हो, हाँ। यस सर सो टू एम सी यस सर कॉस 180 कॉस माइनस 180 थीटा 180 माइनस थीटा, है ना। तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूं क्या, यस क्योंकि सर ये 180 माइनस थीटा पसंद नहीं मुझे, तो क्या करेंगे, अच्छा वो सी में दिया भी है, क्या करना है आपको, हिंट दे ही दिया है ऑलरेडी, है ना। तो एक्चुअली कॉस 180 माइनस कॉस थीटा थीटा होता क्या है, वो तो सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल आ गया ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका कोसाइन वैल्यू नेगेटिव होता है, यस सर तो इसको आप चेंज कर लो। देखो ये चीज ध्यान रखना, मैं अभी अब फिर से वो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये चीज कर अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अगर डाउट आएगा तो कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, मतलब आप 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो, सिमेट्री भी यूज कर रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो यस सब सर पॉजिटिव नेगेटिव सब यूज कर रहे हो, है ना, जो मैंने लास्ट टाइम काफी काफी कुछ डिस्कस किए थे इस बारे सर में। हाँ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यस सर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर प्लस सी प्लस हो स्क्वायर जाएगा, टू प्लस हो एम सी जाएगा, थीटा। प्लस हो जाएगा ना, टू एम सी यस सर कॉस थीटा। अभी ये इसको मैं कॉस थीटा। सेकंड सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, यस सर 1+2 को क्या करो, ऐड कर दो। तो ऐड करते ही क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू टू एम स्क्वायर टू टू एम एम स्क्वायर प्लस टू प्लस सी स्क्वायर, और कुछ टू लिखूं, सी और कुछ नो लिखना है सर कि चलेगा, है ना, क्या चलेगा सर। चलेगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर, तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इसको कुछ नाम दे दिया इन्होंने, जिसने ये पहली यस बार सर देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा ये टाइप का रिलेशन, तो उसने अपना नाम चिपका दिया उधर, तो हम अपना नाम चिपका देंगे, नहीं हम नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है। तो अपोलोनियस, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अपोलोनियस मीडियम थियरम। तो इसको थोड़ा और यस अच्छे से समझते हैं क्या है ये एग्जैक्टली, क्योंकि बार बार हमें ये सारा चीज करना पड़ेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो जब हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ, ए बी सी, यस सर तो अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दो जरा, अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं
मीडियन कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो एक मीडियन ड्रॉ होता है ना? पता है ना आपको ये? मीडियन Yes, जो है sir. ऐसे ड्रॉ होता है ना, अगर मैं यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ करूँ Yes. और यहाँ से भी मीडियन ड्रॉ करूँ, सो दे विल इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, राइट? बात समझ रहे हो आप? तो Yes, अगर sir. मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ, Yes, sir. ध्यान दो जरा, एक अगर मीडियन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कैसे क्या होगा रिलेशन? देखो ये ए हो गया, ये सी हो गया, हाँ, और ये बी हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? Yes, sir. बी हो गया। अच्छा, नाम बदल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बी हो गया, राइट? है ना? Yes, sir. तो बी को उसने क्या कर दिया है? बी बाई टू ले Yes, sir. लिया है, ठीक है? तो बेटर है कि हम भी इसको बी बाई टू ही लेके चलते हैं। ये बी ले लिया, इसको भी बी ले लिया। तो जब इस तरह का मीडियन मतलब क्या होगा? जब हम डिवाइड करेंगे तो सेम साइड में डिवाइड हो जाएगा। तब इसमें क्या रिलेशनशिप बैठेगा? सो दैट इज गिवन बाय द अपोलोनियस थ्योरम। एंड हाउ डिड वी प्रूव द अपोलोनियस थ्योरम? इज बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बैठ रहा है यहाँ पर कि आप डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, ठीक है? इन दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन मिलेगा, B square. समझे? तो इसको अपोलोनियस थ्योरम दिया। मतलब इसमें अगर आपको देखो, अगर मीडियन ड्रॉ किया हुआ है, तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ m। एडवांटेज समझ रहे हो? फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन क्या फायदा है? देखो, अगर हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, सो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस मीडियन। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज द एडवांटेज, क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीज मालूम Yes, sir. है ना, तो एम एम तो फाइंड आउट कर ही लोगे ना, आप नहीं कर पाओगे ये इक्वेशन से, है ना? अगर ये तीन चीज Yes. पता है तो एम भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यही एडवांटेज है कि अपोलोनियस मीडियन थ्योरम विल डेफिनेटली गिव यू द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन लाइक दिस, एंड वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला टू फिगर आउट द एम। ठीक है? Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है? Done, sir. ओके, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और Yes, आगे sir. बढ़ेंगे ग्राफ वगैरह। ओके, बहुत देर के बाद क्लास इस बार Yes. रिक्वेस्ट किया आपने, Okay, sir. बहुत लंबे टाइम के बाद रिक्वेस्ट किया No, क्लास। sir. Actually, मैं out of Delhi था. हाँ, Yes, sir. Out of Delhi था actually मैं. अच्छा अच्छा अच्छा, Sir, out of Delhi था मैं. हाँ हाँ, ज्यादा बाहर मत जाओ, लॉकडाउन खुल गया So तो ये कुछ नहीं है। emergency हो गई थी. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। No, sir. Actually emergency हो गई थी कुछ. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर, सी यू अगेन, बाय बाय। Okay, sir.